Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुखी रहे बच्चों। तो कल पढ़े थे हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से अ बेकअप फ्रॉम गोवा। तो उस पाठ का असली मकसद था कि हाउ गोवा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. What is its distinguishing feature? So we discovered that a baker is a very essential part. A baker is an integral part of Goan society. अब आज देखो अपने समाज में, बिहार में या यूपी में या एमपी में या हरियाणा में कोई फर्क पड़ेगा अगर गांव में एक बेकर नहीं हो. लेकिन गोवा में आपने देखा कि चाहे कोई फेस्टिवल हो, कोई सोशल ओकेजन हो, बेटी की शादी हो, बेटी की मंगनी हो, सारे ऐसे ओकेजन्स हैं कि bakers play a very important role. So we saw that bakers have always been a very important part, an essential part, an integral part of Goan social fabric, of Goan social life. And they were seen, and even today they are seen. They were seen and are seen as friends, guide, companions. Their presence is a must in a Goan village. You have learned that marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as boor. Parties and festivals lose their charm without bread. Ladies must prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. Christmas and other festivals will lose their charms if there are no cakes and bolinas. तो ये सब बातें गोवा को डिफरेंट बनाता है किससे? अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो यह थी एक झलक. इसमें पूरा गोवा नहीं आ गया, बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक झलक, अ ग्लिम्स. तो लेसन का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से अ बेकर फ्रॉम गोवा किया था आपने, और बहुत सारे क्वेश्चन से आंसर्स आपको मैंने करवाए थे. और फिर तो दूसरा जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसमें देख लो, मैरिज गिफ्ट है तो वो क्या, उसका रिलेशन किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में मैरिज गिफ्ट, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, इसका फॉर ए पार्टी और ए फिस्ट, इसका रिश्ता किससे बन जाएगा? ब्रेड से. जो बार बार कितने बार बता दिया हूं तुमको, उसी का एक कॉलमनर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर है, और कर ही लोगे. मैंने बताया ना कि मैरिज गिफ्ट्स बिकम मीनिंगलेस without the sweet bread called bowl. Parties lose their charm without bread. Sandwiches must be prepared on the occasion of the daughter's engagement by their mothers. Christmas and other festivals become meaningless, lose their charm without cakes and bolinas. So thus we see that the presence of a baker's furnace is very essential in a Goan village, and even today they can be seen heralding their arrival with the bang of their bamboo shaft, with their jingles, and they were thought to be, and they are thought to be. Even today they are thought to be friends, companions and guides.
So this is a distinguishing feature of Goan village life, Goan society. तो इसी क्वेश्चन को एक कॉलमनर फॉर्म में आपके किताब में पेज नंबर 87 में दिया हुआ है, कर ही लेंगे। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द बेकर्स वियर। बेकर्स क्या पहनते थे इन द पुर्तगीज डेज, और दूसरा है कि व्हेन द ऑथर वाज यंग। तो इन द पुर्तगीज डेज बेकर्स यूज्ड टू wear a very peculiar dress, a single piece long frock reaching down to their knees. In the Portuguese days, bakers used to wear a very peculiar dress, a single piece long frock. In the Portuguese days, bakers used to wear a very peculiar dress, a single piece frock, reaching down to their knees, and this dress is known as cover. Okay, and when the author was young, when the Lucio Rodrigues, when he was young, he saw bakers wearing shirt and trousers. But the trousers had a special feature. When the author Lucio Rodrigues was young, he saw bakers wearing shirt and trousers. But the trousers were a special kind, is of a special make. They were shorter than the long ones. That means they were shorter than a normal trousers, not a normal trousers. The trousers the bakers wore were longer than half pants and shorter than normal trousers. Okay, so even today in Goa, someone wearing half pants that goes down to their knees invite the coming painter. People start calling him painter. You're looking like a painter. कोई भी इंसान आज भी गोवा में जो ऐसे ट्राउजर्स पहनता है जो नीच से नीचे चला जाता है, तो उसको लोग पेडर कह के पुकारने लगते हैं। तो ये हो गया कि व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पुर्तगीज डेज एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग। अभी बताए हु इनवाइट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनवाइट्स द कमिंग। ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। व्हाई? In Portuguese days and even in the days when the author was young, the bakers would wear trousers that would go down to their knees. So even today someone wearing the same kind of dress invites the coming painter. People start calling him a painter. तो जो लोग ऐसा पहनते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए। उसके बाद है कि when were the monthly accounts of the baker recorded? Where were the monthly accounts of the baker recorded? The monthly accounts of the baker were recorded on some wall with pencil. The monthly accounts of the bakers were recorded on some wall with pencils, and they would collect their bills at the end of the month. They would collect, usually bakers would collect their bills at the end of the month. महीने के अंत में कर लिया करते थे। And what does a jackfruit like appearance mean? जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का क्या तात्पर्य हुआ? तो
bakers have always been happy people. Bakers have always been prosperous people in Goan society. They were well fed and saved so their physique would become plump. Their physique would become थोड़ा सा मोटा ताजा गुलथुल शरीर, not ugly to look at, plump physique. Usually beggars are of plump physique because they lead a happy life, they lead a prosperous life. So a jackfruit like appearance means to have a plump physique, थोड़ा सा फूला हुआ मोटा फिजिक। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, तो कितने बार बताएं तुमको बेकर्स के बारे में। इसके बावजूद अगर तुमको कोई दिक्कत लगे तो हम लोग बैठते हैं शाम में, आप क्वेरी करेंगे, मैं अपनी सीमा में कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट करने का। और एक चीज, दो बातें। एक बात देखो, पहले स्कूल में हम लोग मॉर्निंग असेंबली किया करते थे, और मॉर्निंग असेंबली में मुझे याद है कि कम से कम एक वीक में 2 बार तो जरूर हम लोग 8-10 स्टूडेंट्स को कलम वगैरह देते थे, उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे, उनके आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज को देख करके। तो उसको अगर अभी पढ़ाई हो सकती है और पढ़ाई अच्छी हो रही है मेरे ख्याल से, उस समय जो आप पढ़ते थे हम टीचर्स अभी आपको उससे कई गुना बेहतर पढ़ा पा रहे, तो उस ट्रेडिशन को भी चालू करता हूं। तो देखो एक छोटा सा टास्क देता हूं और ये सारे स्टूडेंट्स ने, अब जैसे अभी आपने पढ़ा कि बेकर फ्रॉम गोवा, तो एक बेकर फ्रॉम गोवा इस लेसन में आपको एक वर्ड ढूंढना है इस लेसन, ठीक है। वो वर्ड है लेवेंड। ये जो वर्ड देख रहे हो आप, लेवेंड। अब बेकर फ्रॉम गोवा में आपको यह वर्ड ढूंढना है लेवेंड, और आपको पूरा सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस, उस सेंटेंस को मुझे बताना है, उस पूरे सेंटेंस को जिस सेंटेंस में ये वर्ड है लेवेंड। तो फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स आपके घर पर विद्यालय की तरफ से प्राइज पहुंच जाए, ठीक है। फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स जो मुझे इस लेवेंड वर्ड जिस सेंटेंस में है उस सेंटेंस को बोलकर सुना देंगे शाम में, एवरीडे जो हम लोग बातचीत करते हैं आपसे। तो 6 स्टूडेंट्स के पास, सबके लिए नहीं संभव है इस लॉकडाउन में सारे घरों तक उस प्राइज को पहुंचाना, लेकिन फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच जाएगा। और सबसे बोलना तो था शुरू में ही, बाद में ही बोल देता हूं एग्जाम के लिए। वो जो 20 स्टूडेंट्स हो, जो थोड़े से खतरा हो, आपके पेरेंट्स को कल परसों से मैसेज भेजा जाएगा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि आप जो 3rd इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है वो फर्स्ट दे दें। आप जो 20 स्टूडेंट्स हो जो थोड़े दुख के कारण बने हुए हैं, आपको फर्स्ट डे ही टेस्ट देना होगा। और हम लोग आराम से जो टारगेट है सरमन एट बनारस, वहां तक पहुंच जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा 20, उसी दिन वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।